مطالبے کو ماننا چاہیے، ان کا چاہے کوئی بھی مطالبہ ہو۔ اس لیے اصل جو موضوع ہے وہ ان شہداء کے مطالبات کو ماننا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو لینگویج استعمال کیا ہے، جو طرز تخاطب انہوں نے اپنایا، یہ ان کو زیب کبھی بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ لوگ ان کے سپورٹر تھے، ان کو چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کروڑوں پاکستانیوں کی دل آزاری کی ہے، اور اپنے اس بھونڈے اور احمقانہ جملے سے انہوں نے دہشت گردوں کو تو سپورٹ کیا ہے، لیکن محب وطن پاکستانیوں کا دل توڑا ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ تدفین کر دیں، اس کے بعد میں آ جاؤں گا، وہاں پہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ سارے قبول کر لیے ہیں، تو تدفین کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ آپ شہداء کے لواحقین سے پوچھیں گے وہ کیوں نہیں کرتے، چونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ حکومتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے ہزاروں بار اس طرح کے واقعات سینکڑوں بار ہو چکے ہیں، اور ان میں وعدے کیے گئے اور ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس لیے ان شہداء کے لواحقین کو حکومتی ارکان کے ایسے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ وہ یقین پریزیڈنٹ سے اور عمران خان سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے عمران خان کو بلا رہے ہیں۔ وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کے ایشو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی پرائم منسٹر کے وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشو ہیں جس وجہ سے وہ نہیں جا سکتے؟ اگر پرائم منسٹر کوئٹہ میں محفوظ نہیں ہے تو پھر اس کو پرائم منسٹر کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وہاں پر 80 لاکھ لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہیں ہے تو پرائم منسٹر کو بھی نہیں ہے۔ اب اگر فرض کریں ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر ان کو اتنا خطرہ ہے تو وہ گورنر ہاؤس تو جا سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس بھی ان کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اگر گورنر ہاؤس محفوظ ہے تو پھر کون سا خطرہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ تو انتہا درجے کی بزدلی ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ انانیت کا مسئلہ ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔ ادھر جانا پڑے گا۔ آغا صاحب ادھر بیٹھتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا، یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا، یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا۔ وقت یزید پہ لعنت، بے شمار، یزید پہ لعنت۔ بے شمار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ منتظمین جو ہیں برادران، آپ اس کو منظم کریں، آپ یہاں لے کے آ گئے تو بسم اللہ آپ اس کو منظم بھی تو کریں نا۔ بیٹھے یار سارے۔ گزارش ہے کہ پیچھے بیٹھ جائیں، آ کے پیچھے بیٹھ جائیں سارے، اور یہ آگے ابھی لگے گا۔ صرف کیمرہ مین ہے وہ کھڑے ہیں، باقی میرے بیٹھے سارے، بیٹھے پیچھے بیٹھ جائیں بھائی جان، چلیں چلیں، بیٹھے سارے بھائی جان، گزارش ہے کہ پیچھے بیٹھے چلیں۔ سوشل میڈیا میں اس کو نشر کیا ہے وہ یہاں پر رہے، باقی یہ پیچھے والے بندے بیٹھے سارے۔ باقی وہ اسٹیج یہاں پر لگا دیں، انتظامی دوست
वो जरा आए और अपना रोल प्ले करें। आगा जो मीडिया से तल्लक रखते हैं वो यहाँ तशरीफ रखें। बाकी मौमीन से गुजारिश है पीछे हो जाए और पीछे तकलीफ सारे जो बंदे खड़े हैं, पीछे खड़े और अभी कुछ देर में ही इंशाल्लाह स्पीकर आ रहा है। उलमाए कराम जो है वो तशरीफ फरमाएंगे और तमाम समाज फरमाएंगे। जितने लोग ये साथ खड़े हैं, जितने पीछे बैठेंगे वो पता चलेगा क्या कितने लोग जो बंदे पीछे आ जाए, जो बंदे खड़े हैं पीछे आ जाए, सारे पीछे आ जाए, पीछे आ जाए सारे, पीछे आ रहे हैं मेरी जान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह। आगा साहब एक पैगाम इस्लामाबाद धरने में हमारे साथ आगा अमीन शहीदी साहब तशरीफ़ फरमाए और इनसे और इनका पैगाम जानना चाहेंगे हम कि कोयटा की मौलूम के लिए इनका क्या पैगाम है। आगा साहब सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब ने फरमाया कि वहाँ पे -13 में लोग बैठ के उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, सर ज़रा आगा साहब पहले इस हवाले से आप कुछ बताएं कोयटा के मोमिनीन के लिए कि क्योंकि कोयटा के मोमिनीन बहुत दिल बर्दाश्त हो गए इनके इस बयान से, क्योंकि रियासत में सबसे जो अभी बड़े वो इमरान खान है और किसी भी घर में अगर कोई लाश कोई फौतगी होती है या कोई मर जाता है या कोई शहीद होता है तो वो अपने बड़े के लिए इंतज़ार में होते हैं ताकि वो आए और उनकी तदफीन हो। लेकिन उन्होंने आज एक ऐसी उन्होंने बयान दिया और उन्होंने ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से कोयटा में जो मोमिनीन धरने में बैठे हैं अपने वर्षा के लाशों के साथ, वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुए हैं। उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कोयटा के उन तमाम शहदा के वारिसों से इस इंतहाई गम और अंदोह के मौके पर इजहार यकजहती करता हूँ। और ये जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, चाहे यहाँ पर हैं, चाहे कराची में हैं, चाहे लाहौर में हैं, चाहे मुल्तान में हैं, चाहे सक्खर में हैं, चाहे पंजाब सिंध और KPK के बाकी इलाकों में हैं, इन सब की तरफ से इन अजीज़ों और हमारे इंतहाई मज़लूम इन मोमिनीन से इजहार यकजहती करते हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब। जहाँ तक इमरान खान के बयान का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है उनको गुज़श्ता 6 दिनों से जिस तरह के मशवरा देने वाले मिले हैं, वो अगर दुश्मन को मिले तो उनको फिर मज़ीद किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। कल भी मेरी 2 वज़रा से बात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान खान को मिसगाइड किया गया है।
कुछ वज़रान कोयटा में इन शुहदा के लवाहिकीन के लिए लफ्ज़ ब्लैक मेलर इस्तेमाल किया, बिल्कुल, और वही लफ्ज़ आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो इमरान खान को मिसगाइड कर रहे थे, अपनी बात में वो कामयाब हो गए हैं। इमरान खान को अक्ल से काम लेना चाहिए था। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो किसी सियासी मकसद के लिए नहीं बैठे हुए। उनका जो लोग बैठे उनका हुए सब हैं, कोई सियासी उनका एजेंडा नहीं है, किसी सियासी एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किसी सियासत के लिए नहीं बैठे हुए। ब्लैकमेलर वो नहीं होता जो अपने अजीजों की लाशें लेकर इस ठंड में, कड़कती हुई सर्दी में सड़कों पर बैठे, वो ब्लैकमेलर नहीं होता। शुहदा के यतीम बच्चे ब्लैकमेलर नहीं होते। शुहदा की वो लावारिस बेटियां ब्लैकमेलर नहीं होती। ब्लैकमेलर हुक्मरान होते हैं, एमएनएज होते हैं, सियासी पार्टियां होती हैं जिनको अपने इख्तिदार तक पहुंचने के लिए दूसरों को ब्लैकमेल करना आता है। जो लोग अपना खून दे रहे हैं, जो लोग अपना लहू दे रहे हैं, जो लोग अपने प्यारों को जामे शहादत नोश करता हुआ देखकर इस मुल्क के खिलाफ नहीं उठते, बल्कि कानून की पासदारी करते हुए शहरी हुकूक मांगते हैं, वो ब्लैकमेलर नहीं होते। इमरान खान की ज़बान से ये जो लफ्ज़ निकला है, इसने करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल दुखाया है, सिर्फ कोयटा वालों का नहीं। इसने करोड़ों पाकिस्तानियों को इमरान खान से मायूस किया है। इसने, इस जुमले ने करोड़ों पाकिस्तानियों को ये बता दिया है कि इमरान खान एक ऐसी चलती फिरती लाश का नाम है जिसके सीने में इंसानी दिल नहीं है, वरना वो ऐसा जुमला कभी भी इस्तेमाल न करते। कोयटा के शुहदा मुकद्दस शुहदा हैं, आखिरी शुहदा नहीं है। शुहदा का एक तसलसल है, और ये जो शुहदा हैं, इनके जो लवाहिकीन हैं, इनके जो वारिस हैं, इस वक्त जिस अंदाज में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तान उनके इशारे के इंतज़ार में है। वो जिस तरह का फैसला करेंगे, बाकी पाकिस्तान उस पर अमल करेगा। इसलिए मुतालिबात शुहदा की फैमिलीज़ के हैं, किसी और के नहीं। शुहदा की फैमिलीज़ का जो भी मुतालबा है, सारा पाकिस्तान उन मुतालिबात के साथ है। चूँकि उन मुतालिबात को बाकी सारा पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम जायज़ भी समझता है और शहरी तकाज़ों के मुताबिक उनका कानूनी हक भी समझता है। लिहाजा जब तक शुहदा के वारिस बैठे हैं, जब तक उनको मुतमईन नहीं किया जाता, जब तक वो राज़ी होकर अपने अजीज़ों की लाशें दफनाने के लिए उठते नहीं हैं, ये धरने वाले भी अपनी जगह आराम से बैठे हैं उस इजहार यकजहती के लिए, और इनको इस अपने इरादे से कोई भी रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब। शुहदा के साथ खड़े होना, शुहदा के वारिसों के गम में शरीक होना, और आगा अमीन शहीदी साहब कोयटा के मोमिनीन के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया, बहुत ही मुस्बत पैगाम दिया उन्होंने। और जिस तरह इमरान खान साहब ने फरमाया कि कोयटा के मोमिनीन हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इसके हवाले से भी आगा साहब ने एक नहायत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने वजाहत कर दी कि कोयटा के मोमिनीन कड़कती ठंड में, जहाँ पे -10 चल रहा है, वहाँ पे बैठ के अपने प्यारों के लाशों के साथ वो कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे, और ना ही उनका कोई सियासी एजेंडा है। हमारा एजेंडा, मोमिनों का एजेंडा सिर्फ एक ही है कि हमें जीने का हक दिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और जिन नामालूम अफराद ने उन मोमिनीन को ज़िबा किया है, उन सब मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, और कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही हम किसी के इशारों पे चल रहे हैं, और ना ही हमें कोई डिक्टेट करने वाला है, ना ही हम किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ यही है कि हमें जीने का हक दिया जाए और इमरान खान साहब कोयटा तशरीफ़ ले जाए। और उन सब
भाइयों से भी दस्तबस्ता गुजारिश है, जो हमारे पश्तून भाई है, जो हमारे बलोच भाई है, हमारे कुछ पश्तून भाई इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने के बजाय हमारे ख़िलाफ़ ही बरसरे पैकार है। और उन तमाम पश्तून भाइयों से मैं एक गुजारिश करता हूँ और उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी जराइम पेशा लोग हैं, ये हम में एक नफ़रतें फैला रहे हैं, हमें अलग कर रहे हैं। इनके डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी पे बिल्कुल अमल ना करिएगा। ये वक्त है साथ देने का और ये वक्त है एक होने का, क्योंकि अगर आज हमारे ऊपर ये मुश्किल हालात है तो कल आपके ऊपर भी ये हालात आ सकते हैं। और इन हालात में बरादर अक़वाम ही एक दूसरे का साथ देते हैं, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार। आप सब भाइयों से, तमाम पश्तून भाइयों से, तमाम बलोच भाइयों से और तमाम सुन्नी भाइयों से यही गुजारिश है, और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम भाइयों से, जो किसी भी फ़िरक़े से हो, जो किसी भी कौम से हो, उनसे एक ही गुजारिश है कि इस मज़लूम कौम का साथ दें और इस मज़लूम कौम की बेकसी का मजाक ना उड़ाए और न ही इस मज़लूम कौम के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करे, क्योंकि ये कौम 22 साल से इस कौम के ऊपर मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है। ये कौम बर्बरियत का शिकार रही है। उन तमाम लोग पश्तून भाइयों से गुजारिश है, मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि खुदारा दुश्मन के साजिश को समझे और इकट्ठे हो जाए और इस मुश्किल वक्त में अपने भाइयों का साथ दे, क्योंकि अगर आज ये वक्त हमारे ऊपर है तो ये आपके ऊपर भी आ सकता है। मांगता अली तुमसे ये वसीयत ना तुम भुला देना, कुछ नहीं मांगता अली तुमसे ये वसीयत ना तुम भुला देना, कुछ नहीं मांगता अली तुमसे ये वसीयत ना तुम भुला देना। और एक और बात कहना चाहूँ, जो बिलाल नूरज़ई के हवाले से लोगों को मुश्तइल किया जा रहा है, बिलाल नूरज़ई के नाम से लोगों को जो मुश्तइल किया जा रहा है, बिलाल नूरज़ई का वाक़या एक हादसा था जिसके लिए हम भी आपके साथ हैं। और जो लोग इसमें मुलव्विस है, जो हकीकी कातिल हैं, उन कातिल को पकड़ा जाए, और जो बेगुनाह लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कातिल है उनको पकड़ा जाए, जो बेगुनाह है उनको छोड़ दिया जाए। इसमें किसी ने क्या गलत कहा है? इसमें कोई गलत बात है अगर हम कहते हैं कि जो कातिल है उनको पकड़ा जाए और जो बेगुनाह है उनको छोड़ दिया जाए? अब इस बात को जो शरपसंद अनासर है, इस बात को एक जवाज़ बना के हमारे अक़वाम, हमारे बरादरी में, हमारे पश्तून भाइयों में एक इश्तिहाल पैदा कर रहे हैं कि वो हज़ारा कौम का साथ छोड़ दे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोयटा वाले, जो हमारे अक़वाम बरादर है, जो हमारे सुन्नी भाई है, जो हमारे बलोच भाई है, जो हमारे पठान भाई है, जो हमारे पंजाबी भाई है, वो कभी इन साजिशों में नहीं आएंगे और वो हमारा साथ देंगे। जो इस साजिश में मुलव्विस है, जो इन दो अक़वाम को, जो कोयटा के अक़वाम में नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, वो सब के सब आश्कार हो रहे हैं। अब सबसे गुजारिश है कि यकजहती का मुजाहरा करें और एक दूसरे का साथ दें, ताकि हम इस बर्बरियत के निशाने से हट जाए, ताकि कोयटा एक पुरअमन शहर बने, बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा बने, इसमें तमाम अक़वाम
اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکے. والسلام. الحمدللہ شکر ہے